Hi everyone, it's me, your Manu Issue, and welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So in this video, we are going to do. There is only one question from the section B of performance measurement and control, and we are going to do that question. So if you are watching my video for the first time, don't forget to hit the bell icon as well as to subscribe my channel. Okay. So question first is what are the gearing ratio and interest cover for pinned company? Place a tick in the boxes in the table below as appropriate. So question is, the following information is available for the pinned company, a manufacturing company. You are provided with the extract from the statement of profit or loss. We do have given a operating profit, interest charges, PBT, taxations, and net profit. So pin company operating profit margin is 15%. So we do have given a operating profit margin, and as well as we know the operating profit. So we can, in case if we need a sales value, we can get it from multiplying these two. Uh, yes, multiplying these two, we can get the sales value. So you are provided with the extract of the SOFP. So we do have given SOFP. Just simply the question has told to calculate the gearing ratio, right? So I will write down gearing ratio. Okay. So now there is two formula for gearing ratio, right? So one is D divided by D plus E, and other one is your D divided by E, right? So let's calculate the by using the both formula. First, we have to know what is a D and E. So D is a debt. In the statement of financial position, the debt value, we do have a non-current liability, and in it's having a heading, it's having a item 1 loan, and other is 5% preference share. So I hope you guys remember that our preference share is also having the characteristics of somehow loan. So we treat it as like a debt, right? So now in total, what is our total debt? So 150, 123 plus 40,000. Okay, so I hope you know why I have taken the preference share, because it's having a characteristics or feature of somehow the loan note. So that's why we treat it as a debt. Now it's time for equity. In equity, it's given total equity and reserve, which is 420,000, right? So if we will total these two, we will get the total debt and equity. Debt plus equity. So now let's calculate it. D is our 190 and D plus E is 61. So converting it into the percentage, we got 31, and if we will simply take D divided by E, in that case we will get 45%. So now you can see the option we have is 25% and 31%, right? So the which one is closest? The first one, 31%. So we will use this formula. But if question has don't told anything about which formula we should use, mostly we used first one formula for the calculation of the gearing ratio. Okay. So next is to calculate the interest cover. So interest cover formula is PBIT. PBIT, profit before interest and tax, divided by the interest. And in the question, PBIT is your operating profit margin, sorry, operating profit, which is given 42,000. Okay, so we do have given the operating profit, which is 42,000, and divided by the interest, which is also given 16,000. So it's 2.625, and we do have an option given. So now you can tick in that particular box. Okay. So next is, which two of the following statement are correct? A reduction in the tax will improve the interest cover ratio. As you have seen in the formula, we have taken the profit before interest as well as tax. So tax will not impact the our operating profit. It will only impact the net profit. So this is not correct. Second, if the level of long term debt in the parent company is reduced, the interest cover and dividend cover ratio will improve. So if company will reduce the long term debt, in that case our getting we don't have to pay
our interest liability will also reduce, right? If the loan amount is reducing, our liability to pay interest will also reduce. As a result of which our interest किधर है, it's on the denominator side, numerator denominator. सो ओवरऑल आपका रेशियो इंक्रीज होगा, सो इट विल इम्प्रूव होगा ना. सो नेक्स्ट इज डिविडेंड कवर. डिविडेंड कवर का फॉर्मूला क्या है? इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड. सो अब इंटरेस्ट ही कम पे करोगे तो यू डू हैव ए मोर प्रॉफिट रिमेनिंग ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं क्योंकि हम लोग इन डिविडेंड कवर, सो वो भी इम्प्रूव होके जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज इफ द लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन द पेंट कंपनी इज रिड्यूस्ड द एसेट टर्नओवर रेशियो विल इम्प्रूव. अब लॉन्ग टर्म डेब्ट, अब इसका देखो पहले एसेट टर्नओवर फॉर्मूला इज, एसेट टर्न ओवर फॉर्मूला इज your sales divided by capital employed, right? Net asset मतलब capital employed, and I had written the capital employed in the shortcut CE. ठीक है. And what is your capital employed? Your capital employed is total equity plus long term debt, or you can calculate it by total asset minus current liability. Okay. So now if you will reduce the long term debt, your total debt amount will reduce, and as well as your capital employed will also reduce. ठीक है. अगर आप लॉन्ग टर्म डेब्ट को रिपे कर रहे हो जिसकी वजह से आपका वो कम हो रहा है लॉन्ग टर्म डेब्ट का बर्डन, इन दैट केस योर टोटल डेब्ट अमाउंट भी तो घटेगा ना. एंड वो टोटल डेब्ट अमाउंट घटना मतलब ये आपका कैपिटल अमाउंट घटना, एंड कैपिटल अमाउंट ये रेशियो के नीचे और है, ये डिक्रीज होना, तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा आपका? इम्प्रूव मतलब इंक्रीज होगा. सो दिस इज ऑल्सो समहाउ करेक्ट. और वैसे भी आप देखो फोर्थ वाला, फाइनेंशियल गियरिंग इज अ मेजर ऑफ रिस्क बट इंटरेस्ट कवर इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. ऑब्वियसली नहीं, इंटरेस्ट कवर भी आपका गियरिंग में ही रिस्क में ही आता है. सो इफ़ 4 नहीं है एंड वी ऑल्सो नो 1 नहीं है, तो 1 गया, ये 1 वाला भी गया एंड ये 4 वाला भी गया, बच गया 2 एंड 3. ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके यू कैन फाइंड द आंसर. सो थर्ड इज paint company has a current ratio of 1.5 and a quick ratio of 0.9, and if the cash in the bank is used to pay some of the payable, what will be the effect on the current and quick ratio? So आपका this one is question number 3. सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आई विल सजेस्ट यू गाइस, अब मैं जैसे ये कर रही हूँ आप वैसे ही फॉलो करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो व्हाट इज योर करेंट रेशियो राइट नाउ? इट्स 1.5 and quick ratio is quick ratio equal to 0.9. so what is the formula of current ratio? current asset divided by current liability. अब इसके लिए इस रेशियो को कैन वी राइट लाइक दिस, 15 डिवाइड बाई 10. एंड सिमिलरली क्विक रेशियो को वी कैन नहीं, इसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटी. ठीक है. एंड इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 डिवाइड बाई 10. ऑब्वियसली डेट ले रहा है तो जस्ट वेट है. ओके. ठीक है. 9 डिवाइड बाई 10. इसको ये पॉइंट दिख रहा है, इसको हटाना पड़ेगा. हटाना नहीं मतलब उसके वजह से ये नंबर दिख रहा था, अदरवाइज इट विल शो लाइक ए डेट, है ना. सो गया. ओके. तो कैन वी राइट दिस नंबर रेशियो लाइक दिस? ओके. नाउ द क्वेश्चन टोल्ड you are going to pay the you are going to pay some of the payable by using the cash balance. Suppose it's 5. okay, I am using 5 cash to pay my payables. So payable will be reduced by same balance 5. मतलब कि अगर आपके पास 5 है कैश बैलेंस में एंड उसी 5 को आप उठा के सप्लायर को पे कर रहे हो, तो मीन्स उतने बैलेंस से आपका पेबल भी रिड्यूस होगा, राइट. सो 15 में से आपका कैश 5 रिड्यूस हुआ, सपोज 5. ठीक है. आई हैव टेकन जस्ट रैंडम नंबर 5.
तो 5 रिड्यूस हुआ तो ऊपर करंट एसेट बच जाएगा 10 एंड सिमिलरली आपका पेबल भी रिड्यूस हुआ विद द 5 एंड नाउ आपका नीचे की ओर क्या बच जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका 5 सो 2। अब रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है चेंजेस की वजह से। अब फिर से बात करते हैं क्विक रेशियो का। मैंने 5 पे किया तो मेरा 5 से कैश बैलेंस रिड्यूस होगा एंड आपका लाइबिलिटी भी 5 से रिड्यूस होगा। सो ओवरऑल ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक सेकेंड, ये होगा ओके सो डिक्रीज हो रहा है, ये आपका क्विक रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो आप उसके अकॉर्डिंग टिक लगा लो। सो अब क्या कहता है 4 नंबर में, इफ ए पेंट कंपनी हैज ए रिसीवेबल टू कैश रेशियो ऑफ 2:2.5, व्हाट इज द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। सो अब यहाँ पे now question number 4. Okay, so in 4 number we do have given the receivables to cash ratio, ठीक है, and what is that 2:2.5, ठीक है। ऊपर में हम लोग को ऑपरेटिंग मार्जिन दिया था, याद है कितना था, इट वाज एक सेकेंड, इसको ऊपर ले चलते हैं, 15%, ठीक है। सो 15% एंड वी ऑल्सो नो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो कितना है, इट्स 42,000। तो हमारा सेल्स यहाँ से निकल जाएगा, सेल्स कितना हो जाएगा आपका 280,000, राइट। अब रेशियो को यूज करते हैं। ओके सो हमारे पास क्विक रेशियो दिया हुआ है, राइट, क्विक रेशियो भी है एंड करंट रेशियो भी है, तो क्विक रेशियो यूज करते हैं। इसमें इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री का वैल्यू भी पता नहीं है हम लोग को, तो क्विक रेशियो 0.9 है एंड क्विक रेशियो मींस करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। एक मिनट, इन्वेंट्री नहीं होगा इसमें, इसमें माइनस कर दूँ, ओके रहने दो। करंट एसेट में क्या क्या आएगा आपका, कैश प्लस रिसीवेबल, इन्वेंट्री तो आएगा नहीं क्विक रेशियो में। एंड इन करंट लाइबिलिटी वी हैव ओनली द बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन विच इज पेबल्स, ठीक है। सो व्हाट इज़ द पेबल बैलेंस, पेबल बैलेंस है आपका 50,000, ठीक है। तो आपका अब करेंट एसेट जो कि कैश प्लस रिसीवेबल है, इट विल बी 0.9 इंटू 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को रिसीवेबल टू कैश रेशियो दिया हुआ है, कोई एक उठा लो, ठीक है। तो मैं सपोज रिसीवेबल का उठा लेती हूँ, ठीक है, तो रिसीवेबल या फिर कैश का ही ले लेती हूँ। तो कैश का लेंगे तो आपका रिसीवेबल इंटू 2.5 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कैश का वैल्यू आएगा प्लस रिसीवेबल, क्योंकि रिसीवेबल हम लोग को चाहिए ना। अब ये मैंने कैसे किया होगा, तो ये आपका रिसीवेबल बाई कैश इक्वल टू 2/2.5, तो मैं कैश का वैल्यू जस्ट इक्वेशन इधर उधर करके निकाली हूँ, ठीक है। सो नाउ आपका ये हो जाएगा 2.5 रिसीवेबल प्लस आपका 2 रिसीवेबल, ठीक है, इक्वल टू दिस इंटू 2, ठीक है। देन आपका इट विल बी 4.5 रिसीवेबल, आप एक्स मान के भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस टोटली। सो रिसीवेबल का बैलेंस क्या आ जाएगा, रिसीवेबल इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 4.5, ठीक है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट आवर रिसीवेबल, क्या है आपका रिसीवेबल डेज पूछ रखा है ना, रिसीवेबल कलेक्शन डेज, ओके। तो ये आपका रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स विच इज़ 280,000 इंटू 365, सो इट्स 26 डेज अगर राउंड अप कर दे तो, राइट। ओके सो लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इफ टर्नओवर ऑफ द पेंट कंपनी इंक्रीज बाय 20% द एसेट टर्नओवर वुड इंक्रीज बाय 20%। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज आवर एसेट टर्नओवर रेशियो करेंटली। क्वेश्चन 5,
ओके, सो एसेट एसेट टर्नओवर, ओके, एंड एसेट टर्नओवर के लिए क्या है फॉर्मूला, वी डिवाइड द सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर हम लोगों ने डेब्ट एंड इक्विटी निकाला है, उसी दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड तो ऑलरेडी है ही, ओके। सो वी डू हैव ए एसेट टर्नओवर 0.46 राउंड अप करके, ओके। सो नाउ क्वेश्चन इज टेलिंग कि अगर एसेट टर्नओवर में, एसेट टर्नओवर में इफ़ टर्नओवर को इंक्रीज करते 20%, मतलब सेल्स वैल्यू को इंक्रीज करते हैं 20% से, 120% इंटू सेल्स वैल्यू कितना है हमारा 280,000, देन व्हाट विल बी द आवर टर्नओवर रेशियो, मतलब कि उसके बाद कितना आता है, क्या वो इंक्रीमेंट 20% से है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, स्टेटमेंट आई मीन। तो ये हमारा न्यू आफ्टर मतलब लाइक 1 से 20% से अगर हम लोग टर्नओवर को इंक्रीज करने के बाद का रेशियो, या लिख देती हूँ आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ टर्नओवर बाय 120% या फिर 20%, बाय 20% होगा, 120 नहीं, ओके ठीक है। सो अब डिफरेंस देखते हैं कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, ये हालांकि टाइम्स में आता है ना, सो ऑलमोस्ट 20%। अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट। सेकेंड कहता है इफ प्रिंट कंपनी हैज अ डिफरेंट डेप्रिसिएशन पॉलिसी टू इट्स कंपटीटर दैट से टर्नओवर रेशियो विल नॉट बी कंपेरेबल, ये भी सही है। अब हाउ, अब डेप्रिसिएशन पॉलिसी को अब आप हो सकता है किसी कोई स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा है, या फिर समवन इज यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कैरिंग एसेट का वैल्यू जो होगा एसेट का, इट विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी और मेथड फॉलोड बाय द कंपनी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो वहाँ पे वो हिट करेगा, वो हिट करना मतलब आपका टर्नओवर को भी हिट कर सकता है, सो इट विल बी नॉट कंपेरेबल, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माई चैनल, बाय।